हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग अपने थोड़ा बहुत टिप्स के हिसाब से मैं दे के और आप लोग इसको अपने हिसाब से तैयार करें, इंग्लिश में ही तैयार करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि व्हेन यू अपेयर फॉर द इंटरव्यू, दे इन द पैनल देयर इज अ psychiatrist, and he observes the body language and your facial expressions, whether you whatever you are speaking, your body also reciprocate that thing or not. So be prepared for that thing as well. It means when you go for an interview, the first thing that comes in your mind, that what how should I behave. So the first thing is you should be confident, not overconfident. And that's the thing that whenever someone is going for an interview, that person cannot be overconfident, but he or she should be confident. Your body language should be appropriate according to the situation. And after greeting the members of the panel, don't get seated unless they ask you to do so. And when they start interviewing, first of all, listen to the question patiently and then answer in a harmonious way. It means you don't have to run for you don't have to answer in that language or in a swift way. If you start answering the question in a swift way, or you try to speak English swiftly, rapidly, you will fall short of words. So first of all, be prepared to speak English in simple manner, in not too slow, not too fast. Your pace should be medium. One more thing, whatever you are speaking, your face should reflect the same, your body should reflect the same. There are a few things that must be kept in mind while talking to others, like if you're pricking your nose, or if you're just doing these type of things, it means you are nervous and your body is showing the same thing. If you prick your nose while answering the question, it means you are not confident enough or you are telling a lie. So if a person who is a psychiatrist, or who is a personality development trainer, or a person who very well knows kinesics or the body language, will be able to understand कि you are not comfortable in answering that question. So let's start. The first question that goes is, tell me something about yourself. Here you have to give a brief introduction of yourself, your family background, a very brief thing, the city to which you belong, and your educational qualification as well. And if you have done something that if they've done something that should be mentioned, like any diploma or any other special quality that you possess, you must mention that. Another question you can see on the screen, that is, this question is very important. Why Kendriya Vidyalaya was established? Yeah, why Kendriya Vidyalayas were established, and when does Kendriya Vidyalaya have branches outside India? Here they wish to ask you whether you know something about Kendriya Vidyalayas or not. So here you have to read about Kendriya Vidyalaya. Like there are 1248 Kendriya Vidyalaya. Earlier they were named central schools, and later on it was changed to Kendriya Vidyalaya. There are 3 branches of Kendriya Vidyalaya outside India, one in Moscow, Tehran, and Kathmandu.
So, and it was established with the purpose to give quality education to the children of army personnel who are often posted in the remote areas. So it comes it but now all, not only the children of army personnel, but the children of or other government employees and other also studying in these Kendriya Vidyalayas. So if you are going for the interview, you must know about Kendriya Vidyalaya. So this question is, how many Kendriya Vidyalayas are there? So there, I have told you that in July I have also gone through the stats. In July 2022, 1,248 Kendriya Vidyalayas were there. So you must prepare for this as well. Now, why do you want to? Now the next question. Let's discuss the question. अब इस question को नहीं देखते हैं. Let's discuss another question. And the question is, जो मैंने अभी आपको tell me something about yourself के बाद, अब next question है, why do you want to be a teacher, or why do you want to join teaching profession? Why do you want to come in teaching profession? अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको इस क्वेश्चन में जवाब देना है कि यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन. अब यहाँ हेयर यू हैव टू कीप इन माइंड, डोंट बी टू आइडियलिस्टिक, डोंट बी टू outspoken, don't be too exaggerating, because maybe whatever you are trying to say, your body will not reciprocate with that thing. So don't be too idealistic as well. क्योंकि एक next question अगर आप, if you try to be too idealistic, they'll ask the next question, so are you ready to work without a salary? So don't try to be too idealistic, because if a person tries to be too idealistic, it happens that people understand that all these things are just fake and the person is not telling the truth. So when it is asked, why do you want to join the teaching profession, just give your point of view about teaching and teaching methods. You can also tell what is the driving force, what is that force which is driving you to become a teacher, and you can also tell them that the influence that you have felt and from other teachers or from any person that has influenced you a lot, and after that you must tell them that how with the help of your knowledge you'll ignite the little minds. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये देखने में क्वेश्चन छोटा है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन, मगर ये अपने आप में एक सागर है. अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं कि सर मैं जो है अपने जो है मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ज्ञान है मैं उसको जो है बच्चों में बांटूँ और मैं जो है बचपन से ही टीचर बनने का सपना, तो ये जो चीज़ होती है ना बहुत आइडियलिस्टिक हो जाती है. हो सकता है ये चीज़ है भी, मगर आइडियलिस्टिक होने का होता है कई बार ना टू आइडियलिज्म. ऑब्वियसली ये प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है कि इसमें आइडियल होना जो टीचर है, जो रियल टीचर है वो आइडियल होगा ही होगा. लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा भावनाओं में भी इंटरव्यू देते हुए नहीं बहना चाहिए, एंड दैट शुड कीप इन माइंड कि वी शुड नॉट बी टू एग्जैजरेटिंग, वी शुड नॉट बी टू आइडियलिस्टिक. टू आइडियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल अकल्पनीय चीज़ें हो वो नहीं होती. तो आप इसमें टीचिंग के मेथड्स और अपने बता सकते हैं कि क्या आप टीचिंग के मेथड्स, टीचिंग से में आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं, आपको किन टीचर्स से यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड, आपको क्या ड्राइविंग फोर्स है जिस वजह से आप ये जॉब करना चाहते हैं. इसके अलावा आप जो है ऐसी क्या आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी है, व्हाट इज़ दैट स्पेशल क्वालिटी थ्रू विच यू कैन इग्नाइट द लिटिल माइंड्स, ये आपको इसमें बताना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है, अब वहाँ पे ना इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं. जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि
कि as you very well know that in 2020 all the schools got closed and the teachers had to take classes from their home. Now tell me ki if this or some other type of circumstances happen, and will you be able to take classes from your home? So with this question they want to ask, are you well versed with technology or not? आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर आप कहते हैं yes, I can take the classes from my house as well. So obviously the next question will be how will you take classes? तो आपको इसके बारे में जानना होगा कि कौन से जो है आपको अगर क्लासेस को घर से लेना है तो कौन से ऐप्स हैं जिनकी सहायता से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बिकॉज आज के समय में दिस इज अ मस्ट. वेदर देर इज एनी, आप मान लीजिए हम ये सब जानते हैं, इफ द स्कूल्स गेट क्लोज्ड बट स्टडीज डोंट. स्कूल्स क्लोज हो जाते हैं मगर पढ़ाई नहीं रुकती है. हाउ? विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. तो आपको ये चीज़ बतानी है कि ऑनलाइन, अब आपको ये जानना कि कौन से ऐप से ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं. अगर आप जूम बोलते हैं या आप गूगल मीट बोलते हैं तो यू मस्ट नो कि हाउ दीज ऐप्स आर, जगह की हाउ टू ऑपरेट दीज ऐप्स. ये नहीं कि सिर्फ इनको बोल के चल दिए, आपको इन ऐप्स को ऑपरेट करना भी आना चाहिए. कि इन अगर आपसे कहा था कि ओके यू विल टेक द क्लासेस विद द हेल्प ऑफ जूम, so can you tell me the process of zoom classes? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको जूम क्लासेस का प्रोसेस भी जानना होगा. नेक्स्ट मैं बोलते हैं यहाँ पर आपकी जो दे ऑल्सो टेस्ट कि वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉट. तो दे आस्क यू, डू यू नो हाउ टू डू वर्क विद MS Word, MS और Excel. तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी इतनी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चीज़ पूछी जाती है कि इसके ये भी आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए. पढ़ाने डेमो ये तो चीज़ बाद में आती है. पहले तो वो आपको ये देखते हैं कि आर यू रियली हैव यू रियली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू बी अ टीचर, बिकॉज टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर. तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं और ये पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट उसमें है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर. अब आपसे पूछा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर, तो आप इसका टाइम लीजिए. ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस बता रहे हैं मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं तो फट दे भी तैयार करके आए हैं, रटे हुए क्वेश्चन है और जवाब देना शुरू कर दें. नहीं, तो सोचने का समय लीजिए. अगर क्वेश्चन का जवाब आता भी है तब भी एक कुछ सेकेंड्स लीजिए सोचने के लिए. तो ये है कि एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर. तो सबसे पहले आपको टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचिए कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम. जैसे ये है कि एक टीचर का है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. अब क्वालिटी एजुकेशन जैसे आप कहेंगे ना तो क्वालिटी एजुकेशन पे आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. इट मीन्स इफ others are not providing quality education, what do you mean by quality education? तो ये जरूर याद रखिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन में आपको बताना क्या है, कि क्वालिटी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं. केवल क्वालिटी एजुकेशन कह देने से बात नहीं बनेगी. क्वालिटी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, क्वालिटी एजुकेशन का आपके क्या मतलब है. क्वालिटी एजुकेशन ये का मतलब ये आप खुद देखिए. अगर हम स्कूल में बच्चे को एक जो टेक्स्ट में दिया हुआ है उसको इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में करके पढ़ा देते हैं तो स्टूडेंट्स इज नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. एक क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि स्टूडेंट शुड टेक इंटरेस्ट इन इट. जो स्किल्स हैं जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो स्किल्स जो है मतलब हमारे जो इसमें सब्जेक्ट में है तो वो जो इसमें है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो बच्चे का एक असेसमेंट होता है, जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है, इफ दैट आउटकम इज कमिंग और नॉट. तो ये क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि वो परंपरागत घिसे पिटे रही तो वो तरीके अपनाना जिससे आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाए. तो ये क्वालिटी एजुकेशन में भी आपको ये देखना होगा कि क्वालिटी एजुकेशन में आपको बताना क्या है. नेक्स्ट इज प्रिपेयर स्टडी मटेरियल और लेसन प्लान बिफोर टीचिंग एनी लेसन. ऐसा नहीं कि रैंडमली. अब आपसे कहा कि हाउ विल यू प्रिपेयर अ लेसन प्लान,
तो आप एक लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाइए एक छोटा सा कि इफ़ यू हैव टू स्टार्ट एक चैप्टर इन द क्लासरूम, सो हाउ विल यू टीच, योर लेसन प्लान शुड बी रेडी, आपका लेसन प्लान रेडी होना चाहिए। एंड इसके अलावा और टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेलुएट एंड ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु हैव सम लर्निंग डिसेबिलिटी, to understand individual difference. This is also the responsibility of a teacher. In a class of 50 or 60, not every student is same. So we as a teacher have to look after those students as well who have some sort of learning difficulty, or we have to keep in mind that students, that individual difference is there, and we have to plan our study material in a way so that maximum learning take place. That all these things you have read well in pedagogy as well. लेकिन उसको आप उसमें कैसे उतारेंगे, ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपका लीडरशिप स्किल, जैसे आपने अपने जब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बताया था, तो उसमें आपने एक बोलते हैं आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपने ये चीज़ बोल दी और उसके बाद आप बार बार फंबल कर रहे हैं या आप बात को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अगर आपने बोला है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इट मीन्स यू शुड हैव दोज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपसे पूछा कि आपने कहा मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो वो आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देते हैं कि इमेजिनरी नहीं, आपसे बोलते हैं कि टेल मी एनी सिचुएशन इन विच that was a difficult work situation and with the help of your team members you could overcome that situation. तो आपको एक कोई ऐसा एक एग्जाम्पल तैयार करना होगा कि जिसमें आप ये बताएं कि हाउ विद द हेल्प ऑफ योर टीम मेंबर्स you overcome some difficult works, you overcame some difficult work situation. ये चीज आपको तैयार। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स दे सकती हूँ। अब आंसर्स भी अगर मैं यहाँ पे बता दूंगी, भाई मेरे एक्सपीरियंस अलग होंगे, आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, तो आपको ये चीज तैयार करनी होगी। हर व्यक्ति का अलग अलग वो चीज होनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो पता चलता है। नाउ अब उसमें पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज योर फेवरेट subject during graduation and which subject you really enjoy teaching. So whatever your favorite subject is, go with that subject. अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि English is my जो है favorite subject, तो English के साथ आप ये बोलेंगे कि भाई जो है English literature, I love teaching poetry, I love teaching prose, और तो उसमें आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि अब उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू मेक अ बोरिंग लेक्चर इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स। या अगर आप कहते हैं कि इफ अ चैप्टर इज डिफिकल्ट, एक क्वेश्चन है, इफ अ चैप्टर इज डिफिकल्ट हाउ विल यू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर ये है कि आप इसमें है कि विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, with the help of flow charts, and with the help of teaching aid material, I'll try my level best to make students understand that difficult concept. तो लर्न, अगर इसमें आपसे पूछा कि आप वो कोई चैप्टर है, आप उसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इस चैप्टर को अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हमें अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसको हम कौन से टीचिंग एड से समझा सकते हैं। जैसे अगर आपको है कि भी अगर हमें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर हमें जो है कॉन्सेप्ट समझाना है, फुट और मीटर का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो हम उसमें जो है इसमें समझाते हैं कि भाई वॉइस के इंटोनेशन से समझाते हैं। तो आप इसमें कौन सी टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोएम पढ़ा रहे हैं, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ानी है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आप कौन सी टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फिगर्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा दें। तो उनके भी आप टीचिंग एड की मदद से किस चीज़ की मदद से आप उसको जो है समझा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको इसमें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन है कि इफ़ यू गॉट अ जॉब इन योर स्टेट, will you leave the job। ये बड़ा वो है कि अब आपसे पूछा कि
if you got selected and you are posted in a rural area where there is no electricity and no amenities, so will you join there? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले उसमें ये यू हैव टू टेल देम कि टू विच सिटी यू बिलोंग, हाउ कंफर्टेबल यू आर इन दैट एटमॉस्फेयर, if you get a job, if you get posting there, will you go or not? So be honest with this question. Be honest. Don't, as I have told you earlier, don't try to be too modest. Be honest with this question, whether you'll join there or you won't join there. Obviously, if you don't have job, you'll go to the last corner of the country. But if you have job, obviously you'll think about it. So be honest with this question. If you are posted in some remote area with minimal amenities, will you be comfortable there or not? And one more thing, if they ask you, if you get a job in future in your state, will you leave KVS or not? तो ये भी आपका जवाब है कि अगर हमें अपने स्टेट में मिल जाती है तो क्या आप सेंट्रल की जॉब छोड़कर अपनी स्टेट की जॉब जाएंगे? तो उसका जवाब भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ये भी आपका जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स? अब क्वेश्चन आया कि यहाँ पर है, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू द मोस्ट इन द क्लासरूम? व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू मोस्ट इन द क्लासरूम? तो इसमें आपको ये भी चीज़ आपको सोचनी है कि there are different type of students, there are different type of things. So what frustrates you? If I tell you कि क्या आपको फ्रस्ट्रेट करता क्या है, तो आप अब इसमें सोचिए कि आपको क्या फ्रस्ट्रेट करता है when you are teaching wholeheartedly and students are not taking interest in your teaching, or there are some students who are continually creating problem in your classes, that those students irritate you, or what other things that frustrate you, that you have to think. एक और चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ कर जाइए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो लोग जो हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एक ये चीज़ है कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस to change something in the education system of India, what changes do you want to bring in the education system of India? ये भी क्वेश्चन जरूर तैयार करेगा, आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। जैसे भाई जो NEP है उसके में चेंजेस को ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि भाई क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हैं, NEP को पढ़ के जाना चाहिए और पता होना चाहिए कि NEP के हिसाब से क्या क्या चेंजेस जो हैं वो होने हैं। मगर अगर आपको चांस दिया जाए कि आप एजुकेशन सिस्टम में जो क्लास आपको दी जा रही है आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? जैसे मैं अगर ये कहूँ कि क्या चेंज करना चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जो एक स्ट्रेस है रोट मेमोराइजेशन पे, कि स्टूडेंट्स हैव टू cram all the concepts and they just vomit those concepts in their final examination, that concept should be removed. Unless they learn wholeheartedly, unless they take interest in learning, real learning is not taking place. तो ये जो रोट मेमोराइजेशन है मेरे हिसाब से उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग जो है वो कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, बहुत जगह पे वो कॉन्सेप्ट नहीं भी वो हो सकते, मगर ये जो है कि हर बच्चे को हर चीज़ जो है वो पढ़नी पड़ती है, वो चीज़ जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर नहीं करता। तो आप ही ये सोचिए कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू चेंज समथिंग इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट विल यू चेंज? तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए कि व्हाट विल। अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो आप इनके जो जवाब हैं
वो तैयार करेंगे और खुद मिरर के सामने बोलिए, मोबाइल पे को स्टैंड पे लगाइए, स्टैंड होते हैं ना मोबाइल वाले, ऐसे होता है ना स्टैंड, ये वाला स्टैंड जो होता है, ये उसको स्टैंड पे लगाइए, रिकॉर्डिंग करिए और अपनी रिकॉर्डिंग को खुद देखकर ये सोचिए कि क्या मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। उस रिकॉर्डिंग को दूसरों को दिखाइए। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद योर बॉडी लैंग्वेज, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को हो सकता है इतने अच्छे से ना पहचाने, लेकिन दूसरे पहचानते हैं। कई बार आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि नर्वसनेस के लक्षण जो हैं वो दिखते हैं। वैसे तो हमारे देश में तो हैंड्स मूवमेंट्स जो चलते हैं, मगर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो दूसरों को इरिटेटिंग भी लग जाते हैं। मैं एक बार मैंने देखा था कि एक स्कूल में एक टीचर थी, एंड व्हेन शी वाज टीचिंग स्टूडेंट्स, तो शी वाज नॉट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा लूप होल है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते, तो अगर आप मोबाइल पे देखकर भी वीडियो बना रहे हैं, तो यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट। इसके अलावा उंगलियां चटकाना या अननेसेसरली जो है वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करना, ये सारी चीज़ें नर्वसनेस का लक्षण होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें, आप कैसे जानोगे कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो? तो मेक अ वीडियो ऑन योर मोबाइल फ़ोन और फिर उस वीडियो को देखिए, और इम्प्रूव जो है आप खुद ही कर सकते हैं। बाकी तो जो लोग जो हैं वो बाकायदा इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर खुद ही आएगा। इंटरव्यू लेने वाला भी नहीं, जो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो भी नहीं डाल सकता जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ना लाओ। घबराओगे, कोई 15 दिन में आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा देगा, ठीक है, लेकिन हाँ आप कोशिश करोगे तो आप 15 दिन में भी सीख जाओगे। तो ये चीज़ आपको जो एक स्पार्क है ना, वो जो है वो अंदर से आना चाहिए, और वो आपके अंदर है और आप वो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए। और उसके बाद जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो शब्द है उनके बीच में हार्मनी होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ टिप्स हैं इंटरव्यू के जो मैंने आज आपको दिए हैं, और आई होप कि ये आप लोग के कुछ थोड़ा बहुत काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, और वो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको विक्ट्री जो है वो प्रदान करेगा। तो मेरा एक ही है, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए और ज़रूर रखिए। बाय बाय, और मिलते हैं अगली बार, अगले क्लास में मिलेंगे।